Hello, learners. Welcome to Unacademy IES. So, aspirants, let's start today's session. And these sessions are dedicated to 70th BPSC and those aspirants who have already cleared 70th BPSC main exam and preparing for their interview phase. So, these sessions are aligned with this preparation, and Unacademy IES is conducting the mock interviews for the BPSC. You can attend the session and get benefited. Now, aspirants, the first topic in today's class. So, the first topic is protests in Iran and Pahlavi dynasty. First of all, let me highlight this thing. Pahlavi dynasty or Pahlavas. All right. So, in ancient Indian history, we study about Parthians and Pahlava who had connection with the Iran. Both are same, दोनों सेम है, बट देर इज अ डिफरेंस कि यहाँ पर हम जो रजा पहलवी की बात करेंगे, ऑलराइट, तो ये एग्जैक्टली उस हाउस से नहीं आते हैं, ये अडॉप्टेड है. ऑलराइट, ये मैंने पहले ही बता दिया कि एग्जैक्टली ये जो पार्थियंस एंड पहलवाज हैं उनके डिसेंडेंट नहीं है. ऑल्दो ये लोग ईरान से ही थे एंशियंट में. In post-Mauryan period, we study about this house. Now, what happened? What happened in Iran? What's happening in Iran? Present and past. All right, दोनों को ही connect करते हैं यहाँ पर और देखते हैं. So, maps and images will be better now. So, in this image, you can see this person, and he is Raza Pahlavi. All right. And who is he? He is Raza Pahlavi. Fine. Raza Pahlavi is a son of last Shah of Iran. All right. Muhammad Raza Shah Pahlavi के बेटे हैं. And ये अमेरिका में रह रहे हैं. All right. Living in America. Western countries का support है इनको. And in between, condition in Iran, when we see the conditions in Iran, internal problems, all right, especially inflation, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, ये लगातार ईरान में बना हुआ है. और इसके बारे में रह करके ईरान में कई बारी जो प्रोटेस्ट हैं वो उभरते रहे हैं वहां पर. फाइन. एंड इन बिटवीन इन्होंने कुछ पोस्ट लिखे, लोगों ने रिस्पॉन्ड किया. एंड at present in Iran, this man Raza Pahlavi is being considered as face of opposition. So at present, where is he? He is outside Iran. एक तो ईरान में ये है नहीं, पहली चीज तो ये है. All right. Second thing is this, जो अगली चीज है यहाँ पर, एक तो outside ईरान है. Second thing is this, आप he has support from Western countries. Support कहाँ से है इनको? Western countries से इनको support है. Fine. Okay. You can see here Iran and the tension, the rift of Iran with America is well known. All right. As well as with Israel, Obi, we all know very well. And especially because of the nuclear program of Iran, Iran के nuclear program की वजह से. So there is a rift between Israel, USA, but Iran is getting support from China as well as Russia. All right. China and Russia both supported Iran in recent past. Recent past में अगर देखें तो support उनका यहाँ पर रहा है. And Iran is very crucial for Persian Gulf, Gulf of Oman,
इस पूरे बेल्ट के लिए. एंड हियर वी सी द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एरिया है. दिस इज द एनर्जी रूट. दिस इज अ काइंड ऑफ, दिस प्लेस इज अ काइंड ऑफ choke point and energy route. So this is the relevancy. Any struggle, any conflict in Iran definitely will directly hit India. खास तौर पे जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उनके ऊपर में इम्पैक्ट आएगा. आगे बात और करेंगे इस पर. बिफोर दिस, in this session I am going to throw light on the history. All right, what happened in Iran in recent in past, especially in 70 80 years में ईरान में हुआ क्या है. Aspirants, when we examine the history of Iran in 20th century में अगर हम हिस्ट्री देखते हैं ईरान का, so like any other nation in Asia, एशिया में जैसे बाकी सारे कंट्रीज हैं वैसे ईरान में भी हम देखते हैं, ईरान was also under the clutches of the colonial powers. colonial powers ही कंट्रोल कर रहे थे ईरान को. all right, and these colonial powers, especially the leading colonial power was ब्रिटेन. कौन सी पावर थी यहाँ पर? दैट वाज ब्रिटेन. ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस यहाँ पर ज्यादा है. ऑलराइट, एंड इन 1925 in 1925 रजा मोहम्मद रजा शाह पहलवी came in power. Who came in power? Muhammad Raja Shah Pahlavi. All right, okay. And he came in power by replacing Ahmad Shah Qazar. Ahmad Shah Qazar was a ruler here. All right, and he defeated, he um, replaced him and came in power. अच्छा, पावर में तो आ गए, ठीक है. जब ये पूरा का पूरा चेंज हुआ, ऑल राइट, सो ऑल दीज थिंग्स हैपेंड इन द बैकग्राउंड ऑफ ब्रिटेन एंड रशिया. ब्रिटेन एंड रशिया का इस पूरे के 1925 में इस पूरे बेल्ट के अंदर में ब्रिटेन एंड रशिया के बीच में एक तरीके का कॉलोनियल, एक तरीके का यहाँ पर एक इंपीरियल कॉम्पिटिशन एक यहाँ पर चल रहा था. ऑल राइट, एंड रजा शाह पहलवी कंट्रोल करते रहे चीजों को. एंड ब्रिटेन की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटेन 1872 के आसपास से ही इस पूरे एरिया के अंदर में काफी इन्फ्लुएंशियल था. एंड 1872 के आसपास में, ठीक है. एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी ईरान के अंदर में जो मिनरल्स वगैरह थे, यहाँ पर रेलवे वगैरह है, इंडस्ट्रीज हैं, तो इन सब को फॉरेन पावर्स को दे दिया गया था. यस, एंड इवन कर्जन भी था उस टाइम पर. एंड कर्जन ने भी इन चीजों को देखा एंड अनप्रेसिडेंटेड सरेंडर बोला उसने कि कोई भी कंट्री ने अपने नेशनल रिसोर्सेज को इस तरीके से कभी ब्रिटेन को सरेंडर नहीं किया होगा द वे ईरान सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटेन. ऑल राइट, सो थिंग्स चीजें चलती रही, आगे चलती रही. बट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर वाज एन एक्यूजेशन ऑन रजा शाह पहलवी. रजा शाह पहलवी पर एक आरोप लगता है, एक्यूजेशन लगता है कि दिस मैन वाज प्रो जर्मन. इन पर क्या आरोप लगा? दिस मैन वाज प्रो जर्मन. ऑल राइट, एंड अब इसकी वजह से यहाँ पर इनको हटाया जाता है. एंड इनको हटाने के बाद में मोसादेग आफ्टर 1941 another leader and his name was Mossadegh. He came in power. Who came in power? Mossadegh came in power. All right, and इन्होंने जो ऑयल वगैरह मिल रहा था ईरान के अंदर में उसे नेशनलाइज करना शुरू किया. Who started doing this? किसने शुरू किया? मोसादेग ने करना शुरू किया. रजा शाह पहलवी को हटाया गया यहाँ से. ऑल राइट, एब्डिक्टेड. ओके, इनको त्यागपत्र देने के लिए मजबूर किया गया. प्रो जर्मन नाजी के साथ में काम करने का इनके ऊपर में एक्यूजेशंस, इनके ऊपर में जो है एक्यूजेशंस लगते हैं. नाउ व्हाट वी सी, मोसादेग चैलेंज्ड द ब्रिटिश अथॉरिटी. जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी यहाँ पर, ऑलराइट, ब्रिटिश पेट्रोलियम का जो एक यहाँ पर एक मोनोपोली बन गया था, मोसादेग उसको चैलेंज करते हैं. और मोसादेग का आइडिया था
कि ईरान को हम एक इंडिपेंडेंट, एक सोवरेन कंट्री, और खास तौर पर इकोनॉमिक टेरिटरी में, इकोनॉमिक रेन में, राइट, हम एक सोवरेनिटी की तरफ लेकर के जाएंगे. सो व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग, फिर यहाँ पर होना क्या शुरू होता है. In 1953 a coup happened and Shah again, Raja Shah Pahlavi again came in power, and under the operation Ajax. All right. So when this coup happened, कब ये coup होता है? A coup happened in 1953 and operation Ajax. ऑपरेशन अजाक्स यहाँ पर होता है. ऑल राइट. एंड CIA, ब्रिटेन, ये सब हेल्प करते हैं रजा शाह पहलवी को पावर में आने में. सो अभी आप खुद भी समझ रहे होंगे कि इफ दिस टाइम रजा शाह पहलवी केम इन पावर विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन एंड CIA, तो डेफिनेटली कि फिर तो उनका पूरा कंट्रोल रहने वाला है ईरान के अंदर में. ऑल राइट. एंड दिस वाज द पीक ऑफ फॉरेन इंटरवेंशन इन ईरान. ईरान के अंदर में जो फॉरेन इंटरवेंशन है उसका पीक हमें दिखना शुरू होता है इन सब जो एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही हैं उनकी वजह से. एंड रजा साहब पहलवी का अपना एक ग्रुप बनता है पैरामिलिट्री टाइप से, पर्सनल पुलिस, सवाक, क्या नाम था इसका, जैसे अभी एट प्रेजेंट IRGC वगैरह देखते हैं इन ईरान, तो इसको सवाक बोला गया. सवाक सर्विलांस, टॉर्चर, रिप्रेशन, पॉलिटिकल जो जो भी रिसेंटमेंट है तो उनको सप्रेस करना, यही सब चीजें यहाँ पर चल रही थी अंडर सवाक. ओके. अल्टीमेटली ईरान के अंदर में जब जो सेक्युलर लोग हैं उन्हें सप्रेस करना शुरू कर दिया गया, एंड जो क्लैरिक्स हैं उन्होंने फिर यहाँ पर एक विरोध दिखाना, डिसेंट दिखाना शुरू किया. एंड जो मस्क हैं, जो मस्जिदों के जो एरियाज हैं, वो एक तरीके से सेंटर्स ऑफ डिसेंट बन करके उभरते हैं. एंड ईरान में जो वेस्टर्न कल्चर एकदम डोमिनेट करते हुए जा रहा था, इसके अगेंस्ट में लोग खड़े होना शुरू होते हैं. एंड ईरान में अगेन एक रिवॉल्यूशन, ईरान में फिर से एक रिवॉल्यूशन होती है इन द 1978-79. एंड अब यहाँ पर जब रिवॉल्यूशन होती है फिर से ईरान के अंदर में, एंड मैसाकर के लोग यहाँ पर, कोम प्रोटेस्ट है, कोम एक एरिया है यहाँ पर, ब्लैक फ्राइडे मैसाकर है, कुछ इवेंट्स है यहाँ पे. एंड अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकलता है कि जो रजा शाह पहलवी है उनको हटना पड़ता है यहाँ से, एंड एंट्री ऑफ खोमेनी. ऑल राइट. सो एट प्रेजेंट इन ईरान we see in Iran we can see all right. So he is in power in Iran. Religious leader है Mr. Khomeini. All right. All right. आप लोग बहुत बारी नाम सुनते होंगे खोमेनी का. So how the Iran is getting ruled, ईरान पर शासन हो किस तरीके से रहा है. सो अ काइंड ऑफ, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, अ काइंड ऑफ डिवाइन किंगशिप, गार्डियनशिप. तो पार्लियामेंट है, मतलब मिक्स ऑफ डेमोक्रेसी है यहाँ पर. प्रेसिडेंट हम लोग देखते हैं, बट मजलिस, जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनका भी ग्रुप यहाँ पर इक्वली पावरफुल है. थियोक्रेसी है यहाँ पर, थियोक्रेसी भी दिखती है. सुप्रीम लीडर के फॉर्म में कौन दिखता है, एज ए सुप्रीम लीडर विसी खोमेनी. एंड जो सोवर्निटी है, जो संप्रभुता है, जैसे इंडिया में आप देखें, वी द पीपल ऑफ इंडिया. ऑल राइट. सो हु इज द सोर्स ऑफ सोवर्निटी इन इंडिया? पीपल ऑफ इंडिया, भारत की जनता है. बट विद रिस्पेक्ट टू ईरान, हु इज द सोर्स ऑफ सोवर्निटी? देन दिस इज द डिवाइन विल, ईश्वर की इच्छा. ये कुछ इंटरेस्टिंग से पॉइंट है यहाँ पर, जो कि इंटरव्यू में आपके सामने कभी बोल दिया, पूछ लिया गया आपसे. ऑल राइट. तो आपको पता होने चाहिए सोवर्निटी, और वो इंडिया से भी कनेक्ट हो जाएगा. सो दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन इन ईरान. ये तो मैंने बता दिया आपको. बट व्हाट इज इंडिया कनेक्शन? इंडिया कनेक्शन क्या है यहाँ पर? फाइन गाइस, वी ऑल नो व्हाट एवर हैपेंड इन वेनेजुएला. एंड लगातार मैं बताते रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ कि वेनेजुएला में क्या हुआ, क्या हो रहा है, पेट्रो डॉलर एंड ऑल दीज थिंग्स. ईरान के अंदर में भी जिस तरीके से आप रजा पहलवी को यहाँ पर आगे ला करके, सन ऑफ मोहम्मद रजा शाह पहलवी, ऑल राइट, एंड द फेस ऑफ अपोजिशन, जिस तरीके से इनको यहाँ पर फिक्स करने की बात हो रही है, तो उनका पावर में आने में प्रॉब्लम नहीं है. बट हु ब्रॉट यू इन पावर?
And what is the purpose? That is a disturbing thing, right? A puppet ruler in neighborhood. All right. And here we all know very well Bandar e Abbas. ऑल राइट एंड इंडिया का जो कनेक्टिविटी है यहाँ से सेंट्रल एशिया के लिए, एज वेल एज आर कनेक्शंस विद द अफगानिस्तान, फाइन। एंड एट प्रेजेंट पाकिस्तान को सपोर्ट अमेरिका से, और अगर ईरान में भी कोई ऐसी गवर्नमेंट आती है जो कि प्रो अमेरिका है, तो वेल ऑब्वियस है कि अमेरिका विल इंटरमीडिएट कि आप पाकिस्तान के साथ में भी रिलेशन अपने ठीक रखो। सो इवेंचुअली दिस इज लाइक टर्निंग द टेबल। All right, and Pakistan, we all know very well, has nuclear weapons. Nuclear weapon है उसके पास में. And this support from America, South Asia में जो power equations हैं, all right, वो इससे disturb होंगी. As we all know very well, China is already supporting China, already supporting Pakistan. America supporting Pakistan. All right, as well as Russia. हमारा फ्रेंड है, पुतिन अभी विजिट पर आए थे, लेकिन रशिया भी पाकिस्तान को कई मौकों पर सपोर्ट कर चुका है इन द रिसेंट पास्ट। वी कैन नॉट इग्नोर दिस फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। ऑल राइट, एंड ऑल दीज थिंग्स आर द मैटर ऑफ वरी फॉर न्यू दिल्ली। ऑल राइट, सो न्यू दिल्ली सिर्फ चुप होकर के देख नहीं सकता, न्यू दिल्ली को बोलना पड़ेगा, नई दिल्ली को बोलना पड़ेगा, एक्टिवली यहाँ पर एजेंडाज सेट करने पड़ेंगे। Otherwise, our energy security, all right, as well as regional stability, ये सारे की सारी चीजें डिस्टर्ब होंगी, एंड डेफिनेटली उनका इम्पैक्ट इंडिया पर भी हमें देखने को मिलेगा। ऑल राइट, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर द इंडिया। ऑल राइट, सो दीज आर द थिंग्स हियर। ये कुछ पॉइंट्स थे एस्पिरेंट्स यहाँ पर आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, विच आई हैव हाइलाइटेड। नाउ आई एम टेकिंग यू फॉरवर्ड towards next topic, and next topic is India Germany partnership. All right, and recently the German Chancellor Mr. Friedrich Merz visited India. All right, and this visit celebrated the 25 years of strategic partnership and 75 years of diplomatic relations. All right, and this visit happened before the India European Union summit, and यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं उनको इनवाइट किया गया है रिपब्लिक डे पर, उसके पहले ये विजिट यहाँ पर होती है। एंड व्हाट वी सी हियर, 19 एग्रीमेंट्स एंड MOUs आर साइंड बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। नाउ आप जो इंडिया और जर्मनी का जो रिलेशन है इज अबाउट व्हाट, इसमें क्या आउटकम्स है, ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि इंडिया और जर्मनी दोनों के लिए बेहतर है, और खास तौर पर इंडिया के लिए हमारे लिए क्या लर्निंग्स है। ठीक है, शुरू करते हैं यहाँ पर। सो एस्पिरेंट्स, दिस विल प्रोवाइड दीज 19 एग्रीमेंट्स जो कि हुए हैं इन डिफेंस, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट, स्किलिंग, पीपल टू पीपल टाइज, so covering the diverse area, diverse things. Now defense boost, under defense joint declaration on defense industrial cooperation, and India's focus, हमारा फोकस किस बात पर है, नॉट ओनली इन बाइंग द प्रोडक्ट्स, बाइंग द वेपन्स, कि हम सिर्फ आपसे वेपन खरीदे नहीं, बट वी आर पुशिंग फॉर द को डेवलपमेंट, वी आर पुशिंग फॉर को प्रोडक्शन, कि डेवलपमेंट और जो प्रोडक्शन है वो भी साथ में किया जाए, एंड प्रेफरेबली इंडिया में किया जाए। ऑलराइट, एंड इससे क्या होगा कि इंडिया को बेनिफिट्स ज्यादा होंगे, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, कोऑपरेशन इन डेवलपमेंट ऑफ सबमरीन्स, CUAS, helicopter systems, and a focus on joint exercises, and this will provide a boost to आत्मनिर्भर भारत अभियान। ऑल राइट, आत्मनिर्भर भारत, खास तौर पर जो रशिया पर डिपेंडेंसी है, आर डिपेंडेंसी ऑन रशिया, दिस विल रिड्यूस दिस डिपेंडेंसी। ऑल राइट,
एंड इससे और क्या होगा, और भी बेनिफिट्स होंगे कि जो वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स ऑफ इंडिया, इंडियाज वर्क फोर्स एंड कॉस्ट एडवांटेज ऑफ जर्मनी, दोनों को कंबाइन करेंगे, वर्कफोर्स फ्रॉम इंडिया एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम जर्मनी कंबाइन करके we can show a path to other countries as well. After this aspirants focus on tech focus, semiconductor technology, building the ecosystem, cooperation on critical minerals, rare earth minerals as well, and artificial intelligence, digital and telecom. Germany has more developed technology, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर उनका जो फंड है वो ज्यादा रहता है, फाइन। तो ऐसे में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी विल डेफिनेटली हेल्प इंडियंस, ऑल राइट। एंड विद दिस कुछ और चीजें भी हैं, इसी को जोड़ते हैं टेक को विद एजुकेशन, यहां से भी कनेक्ट कर लेते हैं। हायर एजुकेशन रोड मैप एंड स्किलिंग सेंटर इन हैदराबाद, रिन्यूएबल एनर्जी स्किलिंग सेंटर इन हैदराबाद। कि रिन्यूएबल एनर्जी में आपको याद होगा, तो मैंने अभी पिछली ही किसी क्लास में बताया था आप लोगों को कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ऑलराइट, सीबीएम, यूरोपियन यूनियन ही इंपोज कर रहा है। एंड वी ऑल नो वेरी वेल जर्मनी इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द यूरोपियन यूनियन, क्योंकि ब्रिटेन तो बाहर है। तो टेक्निकली यूरोपियन यूनियन में जो इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज हैं, दो बड़े नाम है, वन इज जर्मनी, वन इज फ्रांस। जर्मनी के चांसलर इंडिया आए, he visited India, all right. So now we are pushing for the joint developmental projects, all right. And we are inviting German universities in India, हम इंडिया में जर्मन यूनिवर्सिटीज को इनवाइट कर रहे हैं, ऑल राइट। उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करना पड़ेगा, हेल्थ केयर पार्टनरशिप, हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी मोबिलिटी के लिए। एंड इन जर्मनी देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस, ये बातें पहले से भी उठती रही है, फाइन। सो एक्सपेंशन ऑफ जर्मन लैंग्वेज टीचिंग, कि इंडिया में लोगों को जर्मन लैंग्वेज सिखा करके जो स्किल्ड लोग हैं, वी कैन प्रोवाइड देम employment opportunities in Germany, especially in the healthcare sector, all right. And those and other relevant skills, जो दूसरी relevant skills हैं वहां पर भी ये यूजफुल हो सकते हैं। एंड रिन्यूएबल एनर्जी स्किलिंग, जो कि every country is pushing for transition non-renewable to renewable, all right, my bad, okay. So आप CPAM की जो हम लोग बात कर रहे हैं, CPAM की जो बात कर रहे थे हम लोग, under that CPAM we have already highlighted the thing कि just a while, okay, fine. So what I was highlighting under the CBAM thing, what we see, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, कि यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के वो प्रोडक्ट्स जहां पे कार्बन इमिशन ज्यादा हो रहा है उन पर लगा दिया, ड्यूटीज बढ़ा दी, बैन कर दिया, टैरिफ लगा दिया, राइट, इस तरीके से कि ये प्रोडक्ट हम नहीं खरीदेंगे आपसे। तो आप मतलब प्रोडक्ट बैन नहीं किया कि बिकॉज कार्बन इमिशन इज हाई, दैट्स वाई हम बाई नहीं करेंगे आपके प्रोडक्ट्स, ठीक है। So now India needs to change the technology of production, right? उसके लिए भी knowledge चाहिए। So such kind of initiatives like a renewable energy skilling center in Hyderabad, इस तरह के जो initiatives हैं यहाँ पे, so यहाँ पर होता क्या है कि what happens here, इंडिया में लोगों को ट्रेनिंग देंगे और ऐसे में वो एक मैन पावर ऐसा डेवलप होगा इंडिया के अंदर में, जो कि ट्रांजिशन है हमारा टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी, वो इजी होगा, वो आसान होगा, ऑलराइट। दीज आर द थिंग्स। नाउ नेक्स्ट थिंग, ग्रीन पुश। सो 1.24 यूरो का जर्मन फंडिंग अंडर ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप,
और ग्रीन अमोनिया ऑफ टेक डील एज वेल एज सीईओ फोरम। बायलेटरल ट्रेड जो है हमारा जर्मनी के साथ में वो ऑलरेडी करीब $50 बिलियन को क्रॉस कर रहा है। मोबिलिटी एंड पीपल टाइज, सो वीजा फ्री ट्रांजिट फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स वाया जर्मनी। मान लीजिए कभी जर्मनी से होकर के कहीं और जाना है तो ट्रेवलर्स के लिए है वीजा फ्री ट्रांजिट, दिस इज फॉर ट्रेवलर्स, रहने के लिए नहीं है। कहीं जाना है ऑल राइट और बीच में जर्मनी में रुकना है, फ्लाइट आपकी रुक रही है तो जर्मनी का वीजा लेने का जरूरत नहीं है। वीजा फ्री ट्रांजिट, ट्रांजिट है आप देखें यहाँ पर वर्ड तो वो पॉसिबल है, वो भी अलाउ किया गया दोज हु आर होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट। इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक एंड सिक्योरिटी ट्रैक 1.5 foreign diplomacy. What is this track 1.5 foreign policy? So aspirants under this track 1.5 foreign policy, what we see key in track 1.5 foreign policy, this is mix, this is hybrid of foreign policy. Government officials as well as जो unofficials हैं और influential citizens हैं, influential लोग हैं, fine, लाइक ब्यूरोक्रेट्स हो गए, लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, स्टार्टअप ओनर्स हो गए, फाइन, पीपल टू पीपल कनेक्शन, गवर्नमेंट एंड पीपल, ऑफिशियल अनऑफिशियल दोनों का मिक्स है। ऑल राइट, दिस ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी, तो हाइब्रिड डिप्लोमेटिक अप्रोच है, ठीक है, फॉर्मल गवर्नमेंट टॉक्स विद अनऑफिशियल सिटीजन्स। एंड ट्रैक 1 क्या होता है? ट्रैक 1 डिप्लोमेसी जहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही मिलते हैं। ट्रैक 2 भी होता है, ट्रैक 2 में क्या होता है, जो अनऑफिशियल से केवल वही लोग मिलते हैं। तो ट्रैक 1 गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ट्रैक 1.5 हाइब्रिड हो गया, ट्रैक 2 इज unofficial citizen level dialogue, that is track 2 diplomacy. All right, so now you know about track 1 in foreign policy, now you know track 1, 1.5 and 2. All right, सारे मैंने आपको बता दिए, ठीक है, 1, 1.5 and 2. After this, global cooperation, explained triangular projects in Africa, support for UNSC reforms. As Germany and India both are pushing for reforms in United Nations Security Council. It's been years, सालों हो गए इस बात को पुश करते हुए, बोलते हुए इस बात को. All right, and we all know very well the reforms in United Nations are deadly needed. The way America intervened in Venezuela और दुनिया में कुछ नहीं हुआ. It's like there is no UN. Disrupts दिस एक्ट ऑफ अमेरिका, और पास्ट में भी ऐसी इवेंट्स, ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने हमेशा क्वेश्चन रेज किया है कि इज देयर एनी रिलेवेंसी ऑफ यूएन, यूएन के होने ना होने से कोई इंपैक्ट है भी. ऑल राइट, सो लीडर्स लाइक countries like India, Brazil, South Africa, and Japan as well, Germany as well. It's been years. These countries are pushing for reforms in United Nations Security Council. ये reforms होने चाहिए इसके अंदर में. All right, and there is Group 4. There is Group 4. G4 कहते हैं इसको हम लोग. And G4 is the group of India, Germany, Brazil and Japan. What I said? India, Germany तो है ही उसके अंदर, ब्राजील भी है एंड जापान भी है. ऑल राइट, इनका ग्रुप है और इस ग्रुप के हेल्प से, G4 की हेल्प से, these countries are supporting each other. ये हमें यूएनएससी के अंदर में जो है एक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए. ओके, देन फर्दर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, ये सारे पॉइंट तो हो गए, बता दिया मैंने आपको. नाउ लेट्स एग्जामिन, कुछ पॉइंट्स अगर कहीं रह रहे हैं तो उसकी बात भी कर लेते हैं. ऑल राइट, यू कैन सी द मैप ऑफ जर्मनी. ऑल राइट, यस, द ऑटोमोबाइल segment of Germany is very advanced. All right, and India can get the benefit from this. डिफेंस में भी जर्मनी का एक अच्छा रोल है यहाँ पर. एंड जर्मनी के साथ में जो ये डील्स है हमारी, यूरोपियन यूनियन के साथ में भी हमारे कनेक्शन में एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं. ठीक है, नाउ आप लेट्स एग्जामिन, कोई पॉइंट अगर रहता है तो ये सारे पॉइंट तो मैंने बता दिए आपको. 19
MOUs, all right. Defense ties, I have already highlighted. Okay. Then higher education, all right. Upskilling, it's done, all right. And yes, German Indian CEO forum strengthened push for India European Union FTA. India is pushing for free trade agreement uh, between India and European Union. All right. So उसमें एक बड़ी हेल्प हो सकती है खासतौर पे CBAM के आने के बाद से. And whatever we are doing trade with European Union, of this 25% we trade with Germany. 25% हमारा trade साथ में किसके होता है? जर्मनी के साथ में हो रहा है. Then further, you can see here. Uh, okay, digital dialogue, Industry 4.0. Yes, Industry 4.0. We cannot miss this. Industry 4.0, which is led by artificial intelligence and machine learning. All right. Then in the climate, energy, and sustainability, so green hydrogen mega projects. This is very important. All right. Towards a push to renewable source of energy. So how this is important? Listen, it is something like this कि जो पूरा का पूरा चेन है, it is like कि we have electric vehicles. इलेक्ट्रिक व्हीकल से इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम जब चार्ज कर रहे हैं, व्हेन वी आर चार्जिंग, और जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर आ रही है, इफ दैट इलेक्ट्रिसिटी इज थर्मल, सो इट मीन्स दिस होल चेन इज नॉट ग्रीन, बिकॉज इन दिस चेन हमें दिख तो रहा है यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, बट इलेक्ट्रिसिटी कौन सी यूज हो रही है? थर्मल बेस्ड है. सो नाउ पुश फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एंड यूज ऑफ हाइड्रोजन एज अ फ्यूल. This is a very advanced technology. All right, India is pushing for this technology कि technology transfer हो, इसका production हो, production of green hydrogen, and उसका use हो जो engines में. All right, तो ये सब advanced stage की technologies हैं जिसका इंडिया हमेशा से support करते रहा है कि developed countries, all right, under the CBDR, common but differentiated responsibility, CBDR, अंडर द CBDR हमें ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना चाहिए. वी शुड गेट इट. नाउ व्हाट वी सी, कमिटमेंट टू फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक अंडर द UNCLOS, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव. जर्मनी उसमें भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, एंड यूक्रेन, गजा एंड टेररिज्म के ऊपर भी डिस्कशंस यहाँ पर हुए बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी. ऑल राइट. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दिस, UNSC हम बात पहले ही कर चुके हैं, IGC, इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस, ऑल राइट, एंड जर्मनीज सपोर्ट एज वेल एज. अब अगर हम यहाँ पर देखें चैलेंज क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट मे बी द वे फॉरवर्ड. सो सबमरीन डील, ऑल राइट, इज येट टू बी फाइनलाइज्ड, as well as geopolitical divergence, because European Union is also under pressure. And European Union, the countries in European Union, they are actively looking for the partners, especially अमेरिकन. जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को सबोटेज किया है, द वे ही सबोटेज्ड द यूरोपियन यूनियन, कि आई एम प्रोटेक्टिंग यूरोपियन यूनियन, जितने यूरोप में कंट्रीज है अमेरिका ही बचा रहा है उनको, अमेरिका इज रिंग नेटो, नेटो ही चला रहा है अमेरिका को. तो जर्मनी, जो कि यूरोप के अंदर में जर्मनी एंड फ्रांस, स्पेशली जर्मनी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर. तो वेल ऑब्वियस है कि जर्मनी और फ्रांस जो अलग अलग दूसरे कंट्रीज हैं एशिया में, खासतौर पर जैसे इंडिया हो गया यहाँ पर, तो वो उनके इंडिया के साथ में क्लोज आ सकते हैं, साथ में आ सकते हैं. पॉसिबिलिटीज हैं, डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज हैं, एंड दिस विल बी अ थिंग टू काउंटर अमेरिका. बट बात वही है कि यूरोप कब अपना स्टैंड चेंज करेगा, तो फिर इंडिया उसे कैसे मैनेज करेगा. ऑल राइट. So in international relations, it's all about managing your interest. All right. And time-bound implementation of MOUs, memorandum of understanding, is one thing, but implementation is different thing. कि ठीक है MOUs तो साइन हो गया, वेरी गुड, बट इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? All right. That's a different thing.
then align European Union regulations with Indian realities. ऑल राइट, यूरोपियन यूनियन के जो रेगुलेशंस हैं जो मैंने अभी बताया आपको, खासतौर पर CBAM अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, ऑल राइट, खासतौर पे मेटल, फर्टिलाइजर, इन फार्मा, इन सारे सेक्टर्स, स्पेशली मेटल सेक्टर के ऊपर में एक डीप इम्पैक्ट यहाँ पर दिखने का जो है चांस हमको दिखता है, ऑल राइट। देन आफ्टर दिस द next topic is PSLV mission failures, all right. Okay. So what happened here? Let me show you first of all. All right. You can see here PSLV. PSLV, which is known as workhorse, which is known as workhorse of ISRO. But uh, a bad news came. The news is PSLV C62 failed to place 16 satellites into intended orbit. जिस ऑर्बिट में पहुंचाना था इसने, करीब 16 के आसपास सैटेलाइट्स थे, तो वहां तक ये पहुंच नहीं पाया, थ्रस्ट नहीं मिला, उसके पहले ही नीचे आ गया, जमीन पर आ गया। आसान भाषा में ये हुआ है। But what are the technicalities? How this happened? What is the history? All right. So these things are of your importance. इंटरव्यू में जाने के पहले, क्योंकि अभी बहुत सारे डिस्कशंस हुए, बहुत सारी बातें हुई कि कौन कौन सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं, बड़ी सारी बातें हुई, पढ़ाया था हम लोगों ने इसको, ऑल राइट। बट 2026 का पहला ही मिशन था और ये फेल रहा, ऑल राइट। स्पेशली बात ऐसी है कि इन द May 2025 PSLV C61 was also a failed mission. PSLV C62 and C61. All right. So C62 and C61 both are failed. दोनों ही फेल हुए हैं। स्पेशली दोनों में एक कुछ सिमिलरिटीज भी हैं। पैटर्न क्या है दोनों में जो फेलियर हुआ है? तो फर्स्ट टू स्टेजेस, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 बोथ परफॉर्म्ड वेल, दोनों का ठीक गया, ऑल राइट। बट प्रॉब्लम हुई कहां पर? थर्ड स्टेज पर। एंड थर्ड स्टेज पर जो वेलोसिटी इसको चाहिए थी, दिस थर्ड स्टेज इज वेरी डेलिकेट, वेरी क्रूशियल, ऑल राइट। एंड एट द थर्ड स्टेज रिक्वायर्ड वेलोसिटी नहीं मिला, तो ऐसे में जो हमारा रॉकेट है वो ऊपर नहीं जा पाया और वो नीचे की तरफ आ गया, ऑल राइट। सो दीज आर द थिंग्स हियर। नाउ लेट्स एग्जामिन व्हाट हैपेंड हियर। इसरो का जब पहला मिशन C61 जब फेल हुआ, व्हेन दैट मिशन फेल्ड, ऑल राइट, एंड उस पर उन्होंने कमेटी वगैरह बनाई, इन्वेस्टिगेट किया, ऑल्दो रिपोर्ट वाज नॉट मेड पब्लिक। सिक्योरिटी रीजंस भी हो सकते हैं कि व्हाई वी लेट अदर कंट्रीज नो व्हाई वी फेल्ड, रीजन क्या हुआ, क्यों हम फेल हुए, ऑल राइट। सो आप इन्वेस्टिगेशन C61 का तो आ चुका था, C62 में वट एवर प्रॉब्लम हैपेंड, investigation is going on. At first, what we heard, unexpected drop in combustion chamber pressure. जो यहाँ पर जो combustion chamber है थर्ड स्टेज में, combustion chamber जो यहाँ पर है, उसका प्रेशर एकदम से डाउन चला गया, went down, all right, and इसका एकदम से डाउन जाना, ये सिंबॉलिक इमेजेस है, ठीक है, एंड ये कुछ पिछले मिशन के जो है उनका फोटो वगैरह है। मैंने सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए यहाँ पर इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ
टॉप नोट जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या होते हैं, सैटेलाइट्स यहाँ पर होते हैं। ये अल्टीमेटली इसको पहुंचाना है, पेलोड फेयरिंग यहाँ पर ये, ऑल राइट, सैटेलाइट्स यहाँ पर है। तो ये जो अलग अलग जो यहाँ पर है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये इनमें टेक्निकली फ्यूल है, इनमें क्या है, फ्यूल है, ऑल राइट। और ये अगली स्टेज के लिए पुश दे करके, थ्रस्ट दे करके बाकी हट जाएगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, इस तरीके से। बाकी मोटर्स साइंस एंड टेक में आप पढ़ते हैं, वहां पर भी पढ़ाया जाता है आप लोगों को, ऑल राइट। तो पोलर सैटेलाइट है, तो पोलर ऑर्बिट के आसपास तक का जो एरिया है वहां तक इसको पहुंचना है, वहां तक जाना है, ऑल राइट। सो अभी यहाँ पर है क्या चीज कि अगर यहाँ पर थ्रस्ट हटा, घटा, डाउन गया, ऑल राइट, तो फिर आ, आगे के लिए फोर्थ स्टेज के लिए वेलोसिटी मिलेगा ही नहीं। एंड हर एक स्टेज पर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल इज यूज्ड। हर एक स्टेज पर अलग अलग किस्म का फ्यूल यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखें, सो फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल यूज होता है, देन आप यहाँ पर देखेंगे लिक्विड, देन थर्ड में आप जाओगे तो अगेन आपको दिखेगा द सॉलिड रॉकेट मोटर का यूज यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। बेसिकली सॉलिड फ्यूल स्टेज होता है, ऑलराइट। सो फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो 50 टू 60 किलोमीटर के आसपास जो हाइट है वहां तक 2 मिनट के अंदर में पहुंचाता है फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में वी आर यूजिंग विकास लिक्विड इंजन, जो कि इंडिया में हमने डेवलप किया है, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन। बिकॉज पोलर ऑर्बिट की तरफ जाना है तो विकास इंजन का यूज करके, लिक्विड फ्यूल को यूज करके, ऑलराइट। एंड 14,000 kmph, किलोमीटर पर आवर का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पर गेन करता है रॉकेट, ऑलराइट। देन इसके बाद में आप सॉलिड फ्यूल जो आता है थर्ड स्टेज पर, वो 26,000 टू 28,000 kmph, किलोमीटर पर आवर का स्पीड यहाँ पर देता है। और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है, थर्ड स्टेज इज वाई दिस इज क्रूशियल, बिकॉज अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे बाहर निकालने में विच स्टेज इज क्रूशियल, दिस थर्ड स्टेज। अगर यहाँ वेलोसिटी नहीं मिला तो फिर रॉकेट नीचे आ जाएगा, ऑलराइट। जिसको हम लोग जनरल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं एस्केप वेलोसिटी टाइप से, आप ऐसे समझे वहां पर कि उस तरह की एक चीज हो गई। नाउ फोर्थ स्टेज पर जो प्रिसीजन ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट के अंदर में उसका इंसर्शन है, ऑलराइट। एंड लिक्विड प्रोपल्शन, बेसिकली यहाँ पर जो फोर्थ स्टेज है लिक्विड प्रोपल्शन यहाँ पर यूज किया जाता है, ऑलराइट। ओके, सो नाउ यू नो अबाउट ऑल द 4 स्टेजेस एंड द यूज ऑफ द जो फ्यूल है, प्रोपेलेंट्स है, what type of fuel is being used, all right। and third stage में what happens, burning of the solid fuel, and this creates gas buildup, and because of this high chamber pressure, all right। and this chamber drives, अब ये chamber यहाँ पर nozzle है, nozzle के थ्रू यहाँ पर pressure drives thrust via nozzle, all right। any leakage, कोई भी अगर लीकेज हुआ, प्रेशर खत्म हो जाएगा, मिशन फेल हो जाएगा। और कुछ ऐसा नॉर्मली जो हमको दिखाई पड़ रहा है वो यही दिख रहा है, C61 में हमने ऐसी ही प्रॉब्लम यहाँ पर देखी थी। इसके अलावा एक कंसर्न भी है, लास्ट 6 मिशन में से 3 मिशन इसरो के फेल हो गए, एंड डेफिनेटली ये एक कंसर्न रेज करता है ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इसरो, बिकॉज अभी हम पुश कर रहे हैं इस बात के लिए कि इसरो कॉमर्शियली वायबल, जिन्होंने सैटेलाइट्स बनाए अलग अलग लोगों ने, ग्रुप्स ने, स्टार्टअप्स ने, और सारे सैटेलाइट खराब हो गए। एंड हम लोग यहाँ पर पुश क्या कर रहे हैं कि इसरो आप बनाओ सैटेलाइट, हम लॉन्च करेंगे उनको, ऑलराइट। एंड बदले में क्या मिलेगा, हमें पैसे मिलेंगे, बिजनेस मिलेगा। तो कॉमर्शियल लॉन्चेस, ऐसे में क्या होगा कि जो कॉमर्शियल लॉन्चेस हैं, पर्सनल है इसरो का अपना है, ठीक है, वो तो ठीक है, बट जो कॉमर्शियल लॉन्चेस हैं अगर वहां पर इस तरह का फेलियर होगा तो ये डेफिनेटली एक ट्रस्ट इश्यू यहाँ पर क्रिएट करेगा। तो इसरो को जो ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं अलग अलग कंपनीज से, नेशन, देश भी है यहाँ पर, कई छोटे छोटे कंट्रीज हैं जिनके पास में स्पेस एजेंसीज नहीं है, राइट। सो दिस विल रेज अ कंसर्न ऑन क्रेडिबिलिटी ऑफ द इसरो।
एज वेल एज नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, तो उससे भी जो एक्सटर्नल इंक्वायरी है वो भी नहीं हो सकती है। ऑल राइट, एंड आप यहाँ पर देखें ट्रांसपेरेंसी, कंट्रोल, क्वालिटी, रिस्क, ये सब तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। सो व्हाट शुड बी डन, करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए यहाँ पर। होल्ड ऑन। फेलियर्स highlight a technical and institutional challenge. ISRO's past resilience suggests recovery is possible. बिल्कुल सही बात है। ट्रांसपेरेंसी एंड करेक्टिव रिगर आर की टू रेस्टोरिंग कॉन्फिडेंस, कि हमें इंट्रोस्पेक्शन ठीक से करना पड़ेगा एंड ट्रांसपेरेंसी मेंशन करनी पड़ेगी एंड करेक्टिव रिगर इस पर वर्क करना पड़ेगा। अगर इस पर नहीं किया तो जो भरोसा, जो ट्रस्ट बिल्ड किया है हमने सालों में, आप उसको एक बड़ा डेंट लग सकता है। एंड वी आर ऑन द वर्ज, हम उस डेंट के बहुत करीब हैं। ऑलराइट, ठीक है। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दिस थिंग्स जो यहाँ पर जुड़ी हुई थी। नाउ आई एम टेकिंग यू फॉरवर्ड। ऑलराइट, सो वार्निंग, सॉरी, वार्मिंग ऑफ ओशियंस। तो समंदर गर्म हो रहे हैं, वार्मिंग ऑफ ओशन, बिल्कुल सही बात है, पता ही है हम लोगों को ये तो। बट नई रिपोर्ट बता क्या रही है, व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ दिस रिपोर्ट? सो एस्पिरेंट्स, व्हाट्स हैपनिंग हियर, a study titled Ocean Heat Content Sets Another Record in 2025. And this report is highlighting what's happened, highest ocean heat absorption since the 1960s. And अब यहाँ पर है क्या, what happened here, कितना हीट, अब जो हीट जाएगा, अभी हीट का होगा क्या, what will happen with this heat? अब पहले अमाउंट देखो। So zeta joule, 23 zeta joule of heat in 2025, highest on record. This is a 44% increase over 2024. ये बहुत ज्यादा है कि एक मतलब 24 to 25 तक जाने में 44% इंक्रीज, 16 जीटा जूल टू 16 to 23 ZJ। अब अगली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। एज वी ऑल नो वेरी वेल, जो ओशियंस हैं वो जुड़े हुए हैं। ऑलराइट, और जुड़े होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट। क्या होगा, व्हाट विल हैपन हियर, ट्रांसफर ऑफ हीट विल टेक प्लेस। यू कैन से हियर कन्वेक्शन टेक्स प्लेस, कन्वेक्शन होगा, सबडक्शन होगा, एटसेट्रा। ऑलराइट, एंड वार्म वाटर गोज अप, ऊपर की तरफ जाएगा, हेवी वाटर, डेंसर वाटर नीचे की तरफ आएगा। ऑलराइट, एंड ये जो पानी है, ट्रॉपिक्स का जो एरिया है हमारा, यहाँ पर आप देखें पोलर रीजन एंड पोलर रीजन, and sun, solar heating. All right, and sea ice, you can see here sea ice. All right, so what will happen here, melting of ice at the poles. poles पर जो ice है वो मेल्ट होना शुरू होगी तेजी से, ऑलरेडी मेल्ट हो रही है। डूम्स डे ग्लेशियर। ऑलराइट, आप लेकिन मैं आज देख रहा था उसको कि मैं उसको भी ऐड करूं, बट मुझे लगा कि लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। डूम्स डे ग्लेशियर को मैं आगे भी आपको बता दूंगा, क्योंकि अब ये जो रिपोर्ट आ गई है वो डूम्स डे ग्लेशियर पर जो पहली रिपोर्ट आई थी, दोनों जुड़ जाती हैं। ओके, नॉट टू वरी, विल डिस्कस। ओके, सो राइजिंग सी सरफेस टेम्परेचर्स। ऑलराइट, एंड अब ऐसे में होगा क्या, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, इन पोलर आइस के मेल्ट होने से क्या होगा, जो हमारा साउथ अटलांटिक है, नॉर्थ पैसिफिक है, सदर्न ओशियन है, ये तेजी से फास्टेस्ट वार्मिंग रीजन है ये साउथ अटलांटिक एज वेल एज नॉर्थ पैसिफिक एंड सदर्न ओशियन। ऑलराइट, एंड ओशियंस एब्जॉर्ब 90% ऑफ एंथ्रोपोजेनिक हीट। जो मनुष्य, जो इंसान जो गर्मी पैदा करता है उसका भी 90% कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, समंदर ही तो कर रहे हैं। ऑलराइट, एंड डेफिनेटली इससे क्या होगा, जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में जो टेम्परेचर है वो अब यहाँ पर क्या होगा, वो भी, जब ओशियन का भी तो एक लिमिट है हीट एब्जॉर्ब करने का, दिस कॉजेस लॉन्ग टर्म वार्मिंग इवन व्हेन एयर टेम्परेचर स्लो
टेम्परली। अगर एयर टेम्परेचर डाउन भी जाता है तो वी ऑल नो वेरी वेल कि एयर का वार्म होना, कूल होना, उसका रेट इज डिफरेंट, एंड पानी का, वाटर का, ठीक है, ओशियन का कूल होना, वार्म होना, द रेट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, दोनों के रेट में डिफरेंस होता है। ऑलराइट, ओके, सो दिस विल हैपन, increased ocean stratification, warm light surface, water separates from cold dense deeper water, दोनों में results in reduced CO2 absorption। ऑल राइट, अभी पानी गर्म होगा तो अभी यहाँ पर जो मूवमेंट ज्यादा होगा, बिकॉज ऑफ दिस होता होता क्या है कि CO2 एब्जॉर्प्शन वो घट जाता है, एज वेल एज ऑक्सीजन डिप्लीशन वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ऑल राइट, एंड न्यूट्रिएंट स्कैर्सिटी वो भी एक प्रॉब्लम के फॉर्म में हमारे सामने आना शुरू होता है। एंड बिकॉज ऑफ सच चेंजेस, प्लैंकटन, जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स का लाइफ खतरे में आता है। एंड फाइटोप्लैंक्टन्स का लाइफ, फाइटोप्लैंक्टन्स का कम होना, इसका मतलब क्या है कि जो मरीन पूरा फूड चेन है, द कंप्लीट मरीन फूड चेन, वही प्रॉब्लम में आ जाएगा। मतलब फाइटोप्लैंक्टन फूड है टेक्निकली फिशेस का। ऑल राइट, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो डिक्लाइन है फाइटोप्लैंक्टन्स में, फिश है, कोरल्स है, इन सब पर एक इम्पैक्ट डालता है। देन फॉर्मेशन ऑफ मरीन हीट वेव्स। ऑल राइट, दैट मीन्स 3 to 4 डिग्री अगर नॉर्मल से टेम्परेचर ज्यादा रहता है, 5 दिन से ज्यादा, तो इसको हम लोग कहते हैं कि दिस इज अ कंडीशन ऑफ मरीन हीट वेव। ऑलराइट, एंड आईपीसीसी ऑलरेडी इसके बारे में वार्निंग दे चुका है। एंड लगातार 2021 में अगर हम देखें तो पास्ट की कंपैरिजन में जो मरीन हीट वेव्स है उनका जो नंबर है दैट हैज बीन डबल्ड। आप देखें यहाँ पर 2021 frequency doubled between 1982 to 2016। ऑल राइट, तो आप देखें जो मरीन हीट वेव्स है 3 to 4 डिग्री अबव नॉर्मल टेम्परेचर। एंड वार्मर ओशंस, आप देखें इन द यू कैन ऑब्जर्व द ट्रेंड्स, यू कैन ऑब्जर्व दिस ट्रेंड। आप वी ऑल नो वेरी वेल बे ऑफ बंगाल इज मोर प्रोन टू साइक्लोन्स। बे ऑफ बंगाल में हीट ट्रांसफर उतना बेटर नहीं होता है, तो ज्यादा प्रोन है साइक्लोन्स के लिए, ठीक है। बट अरेबियन सी heat transfer is better, all right, but what we are observing कि in the Arabian Sea cyclone formation वहां भी होने लगा है। एंड बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन्स बनते हैं उनका जो इंटेंसिटी है, ऑल राइट, वो और ज्यादा मजबूत और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगा है। ऑल राइट, एज वेल एज साइक्लोन, हरिकेन, एक्सट्रीम रेनफॉल। ऑल राइट, और जैसे ही समंदर तक पहुंचते हैं ये साइक्लोन्स तो सिवियर फ्लडिंग ड्यूरिंग लैंडफॉल। लैंडफॉल जब जब जमीन से जब टकराते हैं साइक्लोन्स तो खूब बारिश होती है। क्यों? क्योंकि तापमान ज्यादा है, सरफेस का इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है, मॉइस्चर ज्यादा है एटमॉस्फेयर में। ऑल राइट, बारिश ज्यादा है। ऑल राइट, सो बिकॉज ऑफ द ओशियन वार्मिंग व्हाट हैपेंस, ओशियन वार्मिंग, जो समंदर जो गर्म हो रहे हैं, ऑल राइट, सो driven mainly by human induced climate change and greenhouse gases का emission, डिफॉरेस्टेशन वी ऑल नो, इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्लाइमेट फीडबैक लूप्स, थर्मल। ऐसे ऐसे लीडर्स हैं, वी नो सच लीडर्स लाइक डोनाल्ड ट्रंप। दिस मैन ओपनली डिनाइज देयर इज नो क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज है ही नहीं। सारा साइंटिफिक डेटा, एवरीथिंग इज गार्बेज इन फ्रंट ऑफ हिम। ऑलराइट, एंड रिसेंट एग्जिट ऑफ यूएसए फ्रॉम यूएनएफसीसीसी, ऑलराइट, वो हमने सबने देखा और उसका इम्पैक्ट मैंने खुद ही पढ़ाया था। ऑलराइट, देन warmer oceans absorb less CO2, warmer oceans, all right, and El Nino like जो events हैं उनके लिए एक अच्छा मौका बनता है। अगर आप देखें इंडियन ओशन सिंस 1950 1.2 डिग्री सेल्सियस तक ये गर्म हुआ है, जो कि जो ग्लोबल एवरेज है उससे भी ज्यादा है। एंड अरेबियन सी शोज राइज इन सीवियर साइक्लोनिक। मैं अभी आपको यही बता रहा था कि अरेबियन सी, क्योंकि मोस्टली काम शांत माना जाता है, वहां पर भी हमें साइक्लोन्स दिख रहे हैं। ऑलराइट, विच इज अ सिंबल ऑफ वरी। मिटिगेशन क्या हो सकता है एस्पिरेंट्स? ऑलराइट, सो मॉनिटरिंग एंड सस्टेनेबिलिटी एंड इंडियाज डीप ओशन मिशन, जो डीप ओशन मिशन है हमारा, ऑलराइट, सो
ये लॉन्ग टर्म ओशियन ऑब्जर्वेशन को प्रमोट करता है, पुश करता है, ताकि हमारे पास इंफॉर्मेशन ठीक रहे और हम प्रिवेंटिव मेजर्स टाइम से ले सके। ठीक है, so guys, these are the things. I hope you all are enjoying the sessions. Fine. And keep attending the classes, mock interviews, and as I always say, together we can. Let's crack it. Thank you.